اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائل ولا يعصي عما أولاد ولا يعادي حقه المجتهد الذي لا يشغله بعد الهمم ولا يشغله بعد الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأنبت قدر میدان عرضه أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الإخلاص له الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الموصوف إنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه فمن كرمه فقد صنعه فمن صنعه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن أشار إليه فمن أشار إليه فقد عبده فمن عبده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقادر المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتظر العالم من الحلقة سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان اس کو جتنا یاد ہے صلوات کی بلند آواز یہ تمام کار چندرات موشش کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کے نابرد پہ چلائے مراضی عالی نتا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوئی وقت جیسے باعث محمد حسین کے لاکھوں دھاؤں کے اقوام رضا قبول پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ حلوزمہ سرکار بنی عصر کے ظہور کا تاجیل فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما تمام اتداروں کو کرنے سے پہلے مطلب انداز کی تمام زیارت مقدسہ کی زیارت رسل فرما تمام تمام کو مجھے تک پہنچائے سہارا ضرورت کر ایک دفعہ ملتے سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے بات حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ولایت علی سے مانوس رکھا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسانیت کو دو طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک وہ ہے جنہیں ولایت علی سے مانوس رکھا اور دوسرے وہ ہے جنہیں بغض علی کی وجہ سے منحوس رکھا بھائی کیا کہنے دوسرے وہ ہے جنہیں بغض علی کی وجہ سے منحوس رکھا اب لوگوں کا اپنا اپنا مقدر ہے دو طرح کے مقدر ہو گئے ہیں یہاں پہ ایک وہ ہے جن کے مقدر میں اللہ نے صرف کرونا رکھا ہے اور ایک وہ ہے جن کے مقدر میں اللہ نے حسین کو رونا رکھا لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو زر بنایا بے داد کو دیکھا مقداد بنایا مجبور کو دیکھا مختار بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے شمس کو دیکھا شمس تبریز بنایا گلی کے فقیر کو دیکھا تو قلندر بنایا سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا ہستی کو نوازا لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے جس گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے جو کہیں
किबले का किबला कहीं नमाजों की नमाज लगाता है, और वाजिबुल इज्जत है वो शख्स जिसे ये घर अपने सीने से लगा लेता है, और वाजिबुल लानत है वो जिसे ये अपनी नजरों से गिरा देता है। नारा हैदरी, हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारा सलावत। जिसे ये अपनी नजरों से गिरा देता है। और दुनिया भरी पड़ी है ऐसों से जो जिन्हें इन्होंने नजरों से गिरा दिया, और कई तो ऐसे हैं जो रसूल के दाएं बाएं। वाह वाह वाह। आज की मजलिस मखसूस है जनाब बाबुल हवाइज मौला अबुल फजल अब्बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला सिर्फ फजाइल के दो जुमले मौला की बारगाह में हदिया करूंगा मौला के मुताल्लिक। बाकी फजाइल में जो अपना सबसे पसंदीदा उन्वान, क्योंकि कल सिर्फ मसाइल पढ़ने हैं, तो आज सबसे अपना पसंदीदा उन्वान अगर किसी के जहन में हो तो उसको याद आ जाएगा। जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो उसको याद आ जाएगा। सुना हुआ है क्या कहने बाबा। मोहसिन नकवी शहीद कहा करते थे कि जिसकी नयाम में सोई हुई तलवार दुश्मन की नींदें हराम कर दे उसे अब्बास कहते हैं। नमाजों में मांगा है अब्बास को अली, और अब्बास की मासूमियत की दलील जो कहते हैं माज़अल्लाह अब्बास मासूम नहीं थे, सबसे पहली दलील अब्बास ने सिफ़ीन के मैदान में अली का कुर्ता पहना था। मासूम के कपड़े सिवाय मासूम के कोई पहन ही नहीं सकता। दलील अभी दे देता हूँ। रसूल के चचा हजरत अब्बास जो रसूल के चचा है, रसूल की शहादत के बाद मौला अली के पास आया और आके कहा या अली मैं रसूल का चचा हूँ, और चचा होने की हैसियत से मैं अपने भतीजे का कुछ सामान है जो तुम्हारे पास है वो लेने आया, यानी कि मेरे भतीजे की अबा अमामा कबा वो मेरे हवाले कर दो। मौला ने कहा ठीक है अब्बास अगर आप लेके जा सकते हैं तो ले जाइए। और ये कहने के बाद मौला ने अमामा निकाला रसूल का, जनाब अब्बास के सर पे रखा, अबा निकाली और जनाब अब्बास के दोस्त पे डाली और कहा कि उठिए चचा जान और ले जाइए। उलमा कहते हैं कि जनाब अब्बास ने बुढ़ापे में जवानी का जोर लगाया लेकिन जमीन से खड़े ना हो सके। बुढ़ापे में जवानी का जोर लगाया, जमीन से खड़े ना हो सके। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ऐ अली क्या रख दिया तुमने मेरे बदन के ऊपर कि मैंने अपने बुढ़ापे में जवानी का जोर लगा दिया फिर भी मैं इस जमीन से खड़ा ना हो सका। उस वक्त मौला ने आवाज दी बेटा हसन जरा बाहर आओ। हसन मौला बाहर आए, वही अमामा उठा के मौला हसन के सर पे रखा, वही अबा उठा के मौला हसन के दोस्त पे डाली। कहा बेटा हसन जरा शहर में चलो। हसन ने चलना शुरू किया, हसन आगे रुके, आवाज दी बेटा हुसैन जरा बाहर आओ। हुसैन बाहर आए, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही अबा हुसैन के दोस्त पे डाली। कहा हुसैन चलना शुरू करो। हुसैन ने चलना शुरू किया, वही अमामा उठा के अपने सर पे रखा, वही अबा अपनी दोस्त पे डाली। अली ने चलना शुरू किया। जनाब अब्बास ने हैरत से पूछा है अली मुझे इस बात पे हैरानी नहीं कि जैसे अबा तुम्हें पूरी जैसे अबा तुम पहन के चले थे वैसे हसन पहन के चले, वैसे हुसैन पहन के चले, मुझे इस बात पे हैरानी है जैसे तुम्हें पूरी आई वैसे हसन को पूरी आई, हसन को पूरी वैसे हुसैन को पूरी आई। क्या कहने भाई वाह वाह वाह। मैं हैरान इस बात पे कि जैसे अबा तुम्हें पूरी आई उसी तरह हसन को, जिस तरह हसन को उसी तरह हुसैन को पूरी आई। यानी कि मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई पहन ही नहीं सकता। और अब्बास मासूम कैसे ना हो, सैयदा की दुआ है अब्बास। किसी ने मौला सादिक से पूछा था मौला आपके चंद की हदीस है अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद। तो मौला आप तो 14 हैं,
اگر 14 کو تقسیم کیا جائے 7 ادھر ہو جاتے ہیں، 7 ادھر ہو جاتے ہیں. آپ کے پہلے والے بھی محمد، آپ کے آخری والے بھی محمد. لیکن مولا یہ آپ کا اوسط کون ہے؟ مولا صادق نے فرمایا اوسط ہمارا عباس ہے. واہ 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 برائے عظمت سرکار مطلب آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی اجازت ہے آگے بات شروع. بسم اللہ بسم اللہ. کربلا واقعہ نہیں، کربلا جنگ نہیں، کربلا ایک راز ہے. جس نے کربلا کو نہ سمجھا اس نے کربلا کو جنگ سمجھا، اور جس نے سمجھا اس نے کربلا کو واقعہ سمجھا. کربلا نہ جنگ ہے نہ واقعہ ہے، کربلا ایک راز کا نام ہے. اور وہ راز کیا ہے؟ اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے، مسلمانوں کا روزہ قبلہ شبیر ہو واہ جائے. واہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر، کربلا کے اگر راز پڑھ دیے جائے، شہادت حسین کے اگر راز پڑھ دیے جائے، تو ایسے ایسے راز ہے کہ دنیا وہ راز سن کے مر جائے. عالم ارواحین میں اپنے موضوع میں قدم رکھو. عالم ارواحین میں اللہ نے روحوں سے اقرار لیا اور آواز دے کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے، کوئی ہے جو مجھ سے عشق کرے. 1,24,000 روحوں کی آواز آئی، ہم عشق کریں گے. اللہ نے کہا کہ تمہیں اس عشق کے وعدے پر میں نبوت دیتا ہوں، اور وعدہ یہاں کرو، امتحان وہاں پہ دو. وعدہ ہو گیا، نبوت مل گئی. انبیاء آنا شروع ہوئے. سب سے پہلے حضرت آدم آئے. توجہ میری طرف رکھیے گا. سب سے پہلے حضرت آدم آئے. آواز آئی آدم عشق میرے اللہ کروں گا. ابھی آدم نے عشق کا سوچا تھا کہ بیٹا قاتل نکلا. آواز دی کہ اگر بیٹا قاتل ہے، جب اولاد میں نقص ہے تو پھر عشق کیسا؟ کیونکہ عشق کے امتحان میں جو چیز میں نے خریدنی ہے اس میں اولاد بھی شامل ہے. جب سودا ہی نقص والا ہو تو اسے خریدا کیوں جائے؟ واہ واہ واہ. نوح آئے. نوح نے کہا، آواز آئی اللہ کی، نوح عشق میرے اللہ کروں گا عشق. ابھی نوح سوچ رہے تھے، گھر میں بغاوت اٹھ گئی. گھر میں بغاوت اٹھ گئی. آواز آئی نوح جب گھر میں باغی ہو تو پھر عشق کیسا؟ انبیاء آتے رہے، عشق کا امتحان دیتے رہے. سب سے آگے حضرت ابراہیم گئے عشق کے اندر. 3 امتحان تھے عشق کے. 2 امتحان حضرت ابراہیم نے اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیے. پہلا امتحان آواز ابراہیم عشق میرے اللہ کروں گا. آواز ابراہیم اگر مجھ سے عشق کرنا ہے تو اپنا سارا مال و دولت لٹانا پڑے گا اور ساری زندگی کی جمع پونجی. کیا تھا؟ ایک بکریوں کا ریبڑ، صرف ایک تسبیح کی خاطر لٹا دیا. تسبیح کیا تھی؟ سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. صرف اس تسبیح کو سننے کی خاطر ساری زندگی کی جمع پونجی دے دی. آواز ابراہیم اتنا عشق میرے اللہ بہت عشق ہے تجھ سے. آواز ابراہیم دوسرا امتحان میرے اللہ دوں گا. آواز ابراہیم اگر دوسرا امتحان دینا ہے تو پھر دوسرا امتحان یہ ہے کہ بیوی اور بیٹے کو بیچ صحرا میں چھوڑ دینا. ٹھیک ہے میرے اللہ. صفا و مروہ کے درمیان حضرت ابراہیم نے جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو چھوڑ دیا تنہا. کہا ابراہیم اتنا عشق؟ کہا میرے اللہ ہاں تجھ سے بہت زیادہ عشق ہے. کہا ابراہیم بس ایک امتحان رہ گیا ہے، دے دے، اور پھر اس کے بعد میں امتحان والا عشق والا دروازہ بند کر دوں گا. میں عشق والا دروازہ بند کر دوں گا. آخری امتحان آواز ابراہیم، آخری امتحان بیٹے کو میری راہ میں قربان کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے میرے اللہ. اور چلے ابراہیم
पहुंचे कुर्बान का। बेटे के गले पे छुरी भी रखी, लेकिन छुरी रखने से पहले आंखों पे पट्टी बांध दी। जब पट्टी खोली तो बेटे की जगह जानवर दिखा। तो आवाज देके कहा मेरे अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आवाज आई इब्राहिम खड़ा हो जा, आशिक नहीं हुआ खलील हुआ है। मेरे अल्लाह इतने इश्क के इम्तिहान, अभी भी आशिक नहीं हुआ, अभी भी खलील हुआ। कहा इब्राहिम ये इश्क का इम्तिहान नहीं। कहा मेरे अल्लाह क्यों? मैंने तेरे कहने पे बेटे के गर्दन पे छुरी रख दी। कहा बेटे के गर्दन पे छुरी रखी थी, फिर आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? आवाज दी मेरे अल्लाह बेटा था मेरा इसलिए बांधी। आवाज आई वो मोहब्बत ही मुझसे कैसी जिसमें किसी और की मोहब्बत शामिल हो जाए। वो कैसी मोहब्बत, वो कैसा इश्क जिसमें किसी और की मोहब्बत शामिल हो। कहा मेरे अल्लाह फिर आशिक कौन है? आवाज आई इब्राहिम इंतजार कर। कहा मेरे अल्लाह इतने इम्तिहान दिए कुछ तो दे। आवाज दी इब्राहिम तुझे इमामत भी दिया, तुझे अपना खलील भी बना दिया। अंबिया आते रहे और फिर रसूल खुदा इस दुनिया में आए। अब रसूल की आवाज है मेरे अल्लाह इम्तिहान। आवाज आई ऐ मेरे महबूब ऐ मोहम्मद इम्तिहान देगा। आवाज दी मेरे अल्लाह जब सबने दिया है तो फिर मैं भी दूंगा। पहला इम्तिहान औलाद का दिया गया। बेटा दिया जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। बेटा दिया और ले लिया। अब रसूल की आंखों में आंसू आए। आवाज़ कुदरत आई मेरे हबीब रो नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर, हम तुझे कौसर अता करेंगे, तू परेशान ना हो। आवाज़ है मेरे अल्लाह फिर इश्क का इम्तिहान का क्या होगा? आवाज़ दी मेरे महबूब तू इश्क का इम्तिहान रहने दे, छोड़ इश्क का इम्तिहान। आवाज़ दी मेरे अल्लाह फिर मेरे बाद तो कोई नबी नहीं है, या तो ऐसा कर मेरे बाद किसी को नबी बना, फिर उससे कहे कि इश्क का इम्तिहान दे और वो ये इम्तिहान पूरा करे। आवाज़ दी मेरे महबूब तेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन तू अपनी ज़बान से कह दे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये इम्तिहान हुसैन देगा। दिन गुजरते गए, आ गई करबला। इश्क का इम्तिहान दिया है हुसैन। इश्क और मोहब्बत में दो चीजें हैं। दुनिया अल्लाह से मोहब्बत करती है, हुसैन ने अल्लाह से इश्क किया। 2 रकअत उल्टी सीधी नमाज पढ़ के दुनिया जिससे मोहब्बत करती है उसे कहती है ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। उल्टी सीधी 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद बंदा दुआ में फहरिस्त बना के पेश कर देता है, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। मोहब्बत का असूल है मोहब्बत में लिया जाता है, इश्क का असूल है इश्क में दिया जाता है। वाह वाह। हुसैन ने अल्लाह से मांगा नहीं, आवाज़ आई मेरे अल्लाह ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे। हुसैन ने सब कुछ अल्लाह की राह में दिया और इश्क का इम्तिहान जारी है। करबला में आए हुसैन 10 मुहर्रम, जब हुसैन करबला में आए, करबला की जमीन में दुनिया क्या समझती है 9 लाख हुसैन के सामने बहुत बड़ी फौज, चूंटी के बराबर नहीं थे ये 9 लाख। हुसैन चाहते तो सिर्फ एक इशारा करते और ये 9 लाख के 9 लाख तबाह हो बर्बाद हो जाते, गरक हो जाते ये 9 लाख। हुसैन ने करबला के मैदान में खड़े होके आखिर में हुसैन आए। अब आवाज आई 1,24,000 अंबिया को आवाज दी गई, मेरे अंबियाओं मेरे नबी, तुम लोगों से वादा किया था मैं तुम्हें इश्क का इम्तिहान दिखाऊंगा। हाँ मेरे अल्लाह वादा हुआ। आवाज दी फिर आ जाओ करबला के मैदान में, मैं तुम्हें इश्क का इम्तिहान दिखाऊंगा। 1,24,000 अंबिया करबला के मैदान में, हुसैन बीच मैदान में खड़े। 1,24,000 अंबिया मैदान में इर्द गिर्द खड़े हैं हुसैन। अब हुसैन ने आवाज हल मिन नासिरिन यंसुरना, कोई है जो मेरी नुसरत करे। दुनिया क्या समझती है हुसैन ने मदद मांगी, हुसैन ने किसी से मदद नहीं मांगी। हुसैन क्या इस मखलूक से मदद मांगेगा जो मखलूक हुसैन के सामने गिड़गिड़ा के कह रही थी हुसैन हमें मौका दे,
حسین ہمیں کہیں، ہوا نے آ کے کہا مولا اگر آپ چاہیں تو انہیں ہوا کے دوش پہ سوار کر کے انہیں کہیں غرق کر دیں۔ پانی نے کہا مولا اگر آپ چاہیں تو زمین پھٹے اور پانی کو زمین اپنے اندر گاڑ دے۔ جنات نے آ کے کہا مولا اگر آپ چاہیں صرف آپ کے کہنے پہ یہ 9 لاکھ کا لشکر یہاں نظر نہیں آئے گا۔ جتنی مخلوقات تھی دنیا میں سب حسین کے پاس کہ مولا ہمیں اجازت دیجیے ہم آگے بڑھ کے ان کو ماریں۔ سب کو حسین نے روک دیا اور پھر آواز دی حل میں ناظرین سونا کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ تو پوچھا گیا مولا سے مولا آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا کربلا کے میدان میں جو انبیاء کھڑے تھے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا عشق کے امتحان کا اور کوئی عشق کا امتحان پورا نہیں کر سکا۔ میں نے یہ اس لیے کہا اگر کوئی چاہے تو آ جائے اور میرے ساتھ عشق کے امتحان میں حصہ ڈالے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین پوچھ تو لیا ہوتا مجھ سے، حسین ہم سے پوچھا ہوتا ہم تیرے ساتھ آتے۔ اب یہ کہنے کے بعد حسین نے آواز دی میرے اللہ تو بھی لا شریک میں بھی لا شریک، تو بھی واحد میں بھی واحد، تو وہاں پہ اکیلا میں یہاں پہ اکیلا، نہ تجھ جیسا کوئی نہ مجھ جیسا کوئی۔ آج تو عشق کا امتحان لے رہا ہے میرا، اگر میرے عشق کا امتحان لینا ہے تو کربلا میں اتر، اگر میرے عشق کا امتحان لینا ہے تو کربلا میں آ۔ دلیل ابھی دیتا ہوں، کربلا معلّہ ہے اور عرش معلّہ ہے۔ معلّہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ رہتا ہو، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، لیکن صرف کربلا معلّہ ہے یا عرش معلّہ ہے؟ محمد کی معراج کیا تھی؟ وہاں پر جانا حسین کی معراج ہے، اللہ کو زمین پر بلانا۔ حسین نے بلایا اور پھر نور توحید نے عرش معلّہ کو چھوڑا اور کربلا معلّہ میں نور توحید۔ اور بعض علماء تو کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے کربلا میں ایسے تھے کہ لوگ تھے ہی نہیں، ایسے تھے کہ وہ 3 گھنٹے اس دنیا میں شامل ہی نہیں، حسین اور اللہ کی ملاقات چل رہی۔ اور پھر جب نور توحید کربلا کے میدان میں اترا تو اللہ کا سب سے بڑا دشمن کربلا کے قریب سے گزرا، ابلیس۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ نور توحید کربلا میں موجود ہے تو آگے بڑھا، قریب آیا، قریب آ کے کہا حیرت ہے آج تک توحید عرش معلّہ نہیں چھوڑا، آج ایسی کیا وجہ بنی کہ تو یہاں پر آ گیا؟ آواز دی ابلیس میں آج یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس نے عشق کا امتحان دیا۔ کیا دیا ہے؟ آواز دی عشق کے امتحان میں اس نے اپنا بیٹا دیا، اپنا بھائی دیا، اپنا 6 مہینے کا بیٹا دیا۔ اور کیا کرے گا یہ عشق کے امتحان میں؟ آواز آئی ابھی یہاں پر اپنے لہو سے وضو کرے گا، اپنے لہو سے وضو کرنے کے بعد اپنے بیٹے بھتیجوں اور بھائی کی لاش کے درمیان پہ سجدہ کرے گا۔ اصحاب کی لاشیں ارد گرد ہیں اور یہاں حسین سجدہ کرے۔ ابلیس نے کہا اگر امتحان ہی دے رہا ہے تو پھر تو مالک ہے، تو قدرت رکھتا ہے، امتحان کو اور بڑھاتا ہے۔ آواز دی ابلیس یاد کر تیری اور میری ناراضگی کس وجہ پر ہوئی، میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے کس وجہ پر نکالا؟ اس نے کہا سجدہ۔ آواز دی ابلیس یہ وہی سجدہ ہے، اس سجدے کی تکمیل ہو رہی ہے یہاں۔ ابلیس سجدہ، اللہ نے ابلیس سے کہا، اللہ نے سجدے کا کہا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں ہوگا، اللہ نے کہا تھا سجدہ میری روح کو ہوگا، اور روح ہے آمر، 14 ہے اولل الامر، روح ہے آمر، اللہ کے آمر کو سجدہ ہوا۔ یہ آج اس سجدے کا ادھار، اس سجدے کا قرض اتار رہا ہے حسین۔ آواز دی تو مالک ہے، تو قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ تو خالق۔ پھر امتحان میں اضافہ کر۔ آواز دی کیا؟ آواز آئی ابلیس کی کہ میرے اللہ پھر اس کے امتحان میں اضافہ کر، سورج سے کہہ
पूरी दुनिया से गर्मी समेटे और सवा नेज़े पे करबला के मैदान में आए और अपनी सारी गर्मी हुसैन के बदन पे डाली। अंबिया खड़े देख रहे, अंबिया की आवाज आई, इश्क का इम्तिहान मजीद बढ़ गया, कहीं ऐसा ना हो हुसैन इश्क का इम्तिहान का सजदा छोड़ दे। फिर अंबिया की आवाज आई, हुसैन सजदा कर दे, हुसैन आखिरी सजदा कर दे, हुसैन इश्क का इम्तिहान पूरा कर दे, हुसैन इम्तिहान पूरा कर दे, तू इश्क के इम्तिहान की इंतहा तक पहुंच गया। इधर कुदरत ने इशारा किया और यहाँ उलमा से पूछना कि 61 हिजरी 10 मुहर्रम वाले दिन सिवाय करबला के मैदान में पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में असर के वक्त अंधेरा था। सूरज ने सारी गर्मी समेटी अपनी और सवा नेज़े पे आके हुसैन पे सारी गर्मी डाली और अंबिया की आवाज है, हुसैन आखिरी सजदा करते। और यहाँ इब्लीस ने इशारा किया और 9 लाख तीर कमानों में आए और 9 लाख तीर कमानों में आए। इन्होंने सोचा कि तीर छोड़े, हुसैन ने अंगड़ाई लेके इनकी सोचों पे कदम रखा और इनकी सोचों पर कदम रखने के बाद हुसैन ने पहला सजदा अदा किया। जैसे ही हुसैन ने सजदा अदा किया, अंबिया की आवाज आई, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, मरहबा हुसैन, तूने आज इसका इम्तिहान पूरा कर दिया, तूने आज इसका इम्तिहान पूरा कर दिया। और ये कहने के बाद जब इब्लीस ने देखा कि सजदा अदा हो गया, इब्लीस ने करबला का मैदान छोड़ने लगा। आवाज़ कुदरत है, इब्लीस कहाँ जा रहा है? आवाज़ है, मेरे अल्लाह मैंने देख लिया कि ये तेरा बहुत बड़ा आशिक है। आवाज़ है, इब्लीस फिर पूरी बात करता जा, मेरे अल्लाह मैं यहाँ रुक नहीं सकता, अगर तू चाहे और पिछले सजदे की माफी दे, अभी फौरन इसे सजदा करूँ, अभी फौरन इसे सजदा करूं। अगर तू पिछले सजदे की माफी दे, तूने आज से पहले ऐसा आदम मुझे दिखाया नहीं था, तूने आज से पहले ऐसा आदम मुझे दिखाया नहीं था। अगर ये आदम दिखाया होता दरूद पढ़ गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और आज की मजलिस मसाइब के हवाले से बाबुल हवाइज मौला अब्बास से मंसूर। छब्बीस हिजरी 4 शाबान बनी हाशिम का चांद बन के उम्मुल बनीन की गोद में आया अब्बास। और अज़ादारा जब रिश्ता हुआ ना जनाब उम्मुल बनीन और मौला अली का, जनाब अकील रिश्ता लेने गए, लेकिन जनाब उम्मुल बनीन से जब पूछने गई उनकी वालिदा, तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, अम्मा मुझे नहीं मालूम कि मेहमान खाने में कौन आया, लेकिन ये जो 3 दिन से हमारे घर मेहमान आया है ना, ये अकेला नहीं आया। 3 दिन से जब भी रात होती है, एक बीवी मेरे घर मेरे हुजरे में आती है। अम्मा ये जो रात गुजरी है ना, ये बीवी मेरे हुजरे में आई थी और इसकी गोद में एक चांद था, इसने वो चांद उठा के मेरी गोद में रखा। अम्मा मैंने कहा कि बीवी ये कौन है? आवाज दी, तू मेरे बेटे की माँ बन रही, ये मेरा बेटा। फिर उस बीवी की आवाज आई कि उम्मुल बनीन जब मेरे घर पे जाना सुनना, सैयदा जनाब उम्मुल बनीन से कह रही, उम्मुल बनीन जब मेरे घर पे जाना तो मेरे हुजरे में एक संदूक रखा, उस संदूक को खोलोगी तो मैंने अपने हाथों से अब्बास के लिए कुर्ते सी के रखे। जनाब उम्मुल बनीन कहती है, अम्मा मैंने रो के पूछा कि ऐ बीबी आपने मेरे बेटे के लिए कुर्ते क्यों सिए? तो जनाब उम्मुल बनीन कहती है, अम्मा वो बीबी बहुत रोई और उस बीबी की आंखों में आंसू आए और सारों कतार रो के कहती है, मैं अब्बास के लिए कुर्ते क्यों ना सियूं, मेरी बेटियों की चादर का ज़ामिन है अब्बास, मेरी बेटियों की चादर का मुहाफिज है अब्बास। आ गए 4 शबान 26 हिजरी को अब्बास इस दुनिया में, अब बहनें पाल रही हैं अब्बास को। जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम, कभी जनाब ज़ैनब उठाती हैं, कभी जनाब उम्मे कुलसूम उठाती हैं। एक दिन जनाब ज़ैनब घर में मौला अब्बास को उंगली पकड़ के चलाना सिखा रही थी कि इतने में मौला अली घर में दाखिल हुए।
जैसे ही घर में दाखिल हुए आवाज दी, बेटी ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही हो। आवाज दी, नहीं बाबा, अब्बास के सहारे चलना सीख रही हो। गिरिया जी भर के करना, कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हें, ना कोई तुम्हें तमाचे मारेगा, ना तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। जी भर के गिरिया करना, जी भर के मातम करना, क्योंकि आखिरी 2 दिन बचे हैं अज़ादारों, बचे जो अगले बरस को हम हैं और ये गम है। अगर ना रहे तो अपना ये सलाम आखिर है। गिरिये में कंजूसी ना करना, क्या पता किसके बराबर में सैयद सज्जाद बैठे हो, तो क्या पता कि सैयद सज्जाद की गोद में आज चचा का पुरसाले सकीना भी आई हो। जी भर के गिरिया करना, शर्म न करना रोने में अज़ादारों। अब्बास को आवाज दी, बाबा अब्बास के सहारे चलना सीख रही हो। काफी दिनों के बाद जब मौला अब्बास अपनी माँ के घर पहुंचे तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, अब्बास इतने दिन से कहाँ पर थे? आवाज दी, अम्मा बहनों के घर पे था। आवाज दे के कहा, अब्बास वो बहनें नहीं है, वो आकाज़ादियाँ हैं। अब्बास वो आकाज़ादियाँ हैं, मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। तू उनके घर का नौकर है, वो आकाज़ादियाँ। अज़ादारों एक दिन गुजरा, दिन का गुजरना था कि जनाब ज़ैनब परेशान हुई और आवाज दी, बहन उम्मे कुलसूम चलो जरा देखें कि अब्बास को खैर है, कहीं कोई मसला तो नहीं हुआ अब्बास को। अज़ादारों दोनों बहनें चली और जनाब उम्मुल बनीन के घर पहुंची। जैसे ही घर पहुंची देखा अब्बास सहन में खेल रहे हैं। जनाब अब्बास ने बहनों को आते देखा, दौड़े और दौड़ने के बाद करीब जाके हाथ बांध के सर को झुका लिया और आवाज देके कहा, आकाज़ादी गुलाम का सलाम हो, आकाज़ादी गुलाम का सलाम हो। आवाज दी जनाब ज़ैनब ने, अब्बास पहले तो बहन कहते थे, आज आकाज़ादी क्यों कह रहे हो? आवाज दी, आकाज़ादी पहले के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे तो अम्मा ने पहले बताया ही नहीं था कि आप आकाज़ादी हैं, मैं गुलाम हूँ, मैं कनीज का बेटा हूँ, आप आकाज़ादी हैं, मुझे तो अम्मा ने बताया ही नहीं था। अज़ादारों ये कहना था। आवाज दी, अब्बास ये किसने सिखाया? आवाज दी, अम्मा ने। आंखों में आंसू आए, जनाब ज़ैनब की आंखों में आंसू देखे तड़प के जनाब उम्मुल बनीन बोली, अब्बास बोल दे बहन। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। अब्बास बड़े हो रहे हैं। 40 हिजरी शहादत अमीर के बाद 14 साल के हैं अब्बास। जब पहली मर्तबा ईद आई है बाप के बाद तो अज़ादारों जनाब हसन आए और आके कहा, बहन ज़ैनब आज बाबा को गए हुए 10 दिन हो गए। बहन जब बाबा होते थे तो बाबा अपने हाथों से ईदी देते थे, अब मैं बाबा की जगह हूँ। बहन ज़ैनब अगर कुछ चाहिए तो अपने भाई से मांगो। आवाज दी, भैया हसन वो देंगे जो मैं मांगूंगी। आवाज दी, हाँ ज़ैनब मैं दूंगा, मैं अली का बेटा, मैं क्या करूँगा, मांगो क्या चाहिए। आवाज दी, नहीं भैया मुझे कोई जमानत दे, मुझे कोई जामिन दे। मौला हुसैन करीब खड़े थे। आवाज दी, मेरा हुसैन जामिन है, जो मांगोगी मैं दूंगा। आवाज दी, अच्छा फिर अब्बास को कहिए बाबा के कपड़े पहने और शहर में चले, मुझे बाबा की ज़ियारत करनी है। अब्बास बाबा के कपड़े पहनता है, हूबहू मेरा बाबा लगता है। अब्बास से कहें बाबा का कुर्ता पहन के शहर में चले, मुझे बाबा की ज़ियारत करनी। अब्बास बड़े हो रहे हैं, हुसैन को कोई भी काम होता आवाज देते, अब्बास पानी ले आओ, अब्बास घोड़ा ले आओ, अब्बास खत लिखना है, अब्बास ये काम कर दो, अब्बास मुसल्ला बिछा दो। जो भी काम होता मौला अब्बास से कहते। एक दिन नमाज पढ़ रहे थे मौला हुसैन और आवाज दी, अब्बास। जैसे ही ये कहा तोड़ते हुए आए और मौला हुसैन के कदमों में बैठ के कहा, जी मौला। आंखों में आंसू आए मौला हुसैन के, रो के कहा, अब्बास तुम्हारे हाथ सलामत रहे। आवाज दी, मौला हुक्म। आवाज दी, अब्बास कुछ नहीं। मौला अब्बास आगे बढ़े और देखा, आवाज दी कि मौला किसने रुलाया आपको? आवाज दी, अब्बास किसी ने नहीं रुलाया, बस एक बात याद आ गई। आवाज देके कहा, अब्बास क्या याद? मौला हुसैन मौला अब्बास ने कहा, आका क्या याद आया है?
मुझे भी बताइए। आवाज देखेगा अब्बास, जब मैंने आज तुम्हें आवाज दी है तुम दौड़ते हुए आए हो, लेकिन अब्बास एक वक्त ऐसा होगा मैं तुम्हें पुकारता रहूंगा, तुम नहीं आओगे। अब्बास हुसैन बुलाता रहेगा, तुम नहीं आओगे। ये सुना अज़ादारों, मौला हुसैन के हुजरे से निकले और हुजरे के दरवाजे पे बैठ गए। 3 दिन गुजरे, 3 दिन मुसलसल जाग रहे हैं। 3 दिन गुजरे जनाबे फिजा जनाबे ज़ैनब के पास, और आगे कहा बीबी मैं 3 दिन से देख रही हूँ अब्बास हुसैन के हुजरे के बाहर बैठे। हुसैन हुजरे से निकलते हैं, जहाँ भी हुसैन जाते हैं अब्बास पीछे पीछे। हुसैन हुजरे में आ जाते हैं, अब्बास हुसैन के हुजरे के दरवाजे पे बैठे। अब्बास 3 दिन से सोए नहीं है। जनाबे ज़ैनब ने सुना, आवाज दी अम्मा फिजा जरा मेरे भाई अब्बास को बुलाइए। जनाबे अब्बास को बुलाया। आज़ादारों हाथ बांधे हुए हैं, सर झुका हुआ। जनाबे ज़ैनब के सामने आए और आके कहा जी आकाज़ादी। आवाज दी अब्बास जरा सर को उठाओ। मौला अब्बास ने सर को उठाया। आवाज दी अब्बास जरा आंखें खोलो। आंखें खोली, आंखें सोती। अब्बास ये बताओ कितने दिन से नहीं सोए? आवाज दी आकाज़ादी 3 दिन से। आवाज दी अब्बास कोई वजह? आवाज दे के कहा बीबी मौला हुसैन ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा हुसैन तुम्हें बुलाएगा, अब्बास तुम नहीं आओगे। अज़ादारों जनाबे अब्बास को लिया जनाबे ज़ैनब ने और पहुंची मौला हुसैन के हुजरे में। आवाज दे के कहा भैया आपने अब्बास से ऐसा क्यों कहा कि अब्बास मैं तुम्हें बुलाऊंगा और तुम नहीं आओगे? हुसैन ने आगे बढ़े और जनाब अब्बास को गले से लगाया और आवाज दी कि अब्बास तुम्हारा भाई, तुम्हारे सगे अब्बास, हुसैन तुम्हारे कुर्बान। अब्बास मैंने मदीने की बात नहीं की, मैं करबला की बात कर रहा हूँ। 10 मुहर्रम अब्बास हुसैन तुम्हें करबला के मैदान में बुलाता रहेगा। अब्बास तो मुराद के किनारे बगैर बातों के। हुसैन बुलाता रहेगा, अब्बास तुम फुरात। जो भी काम होता मौला अब्बास से करो। चला काफिला करबला पहुंचा। आज़ादारों काफिला करबला पहुंचा। किताब का नाम है ज़िक्रुल अब्बास। उसके मुसन्निफ लिखते हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन मौला अब्बास 120 मरतबा मौला हुसैन के पास। वो लिखते हैं कि मौला अब्बास मौला हुसैन के पास 120 मरतबा है। जब भी आते आके कहते मौला जंग की इजाजत चाहिए। हुसैन एक नजर उठा के देखते अब्बास वापस पलट जाते। आखिरी मर्तबा जब अब्बास आया आके कहा आका मुझे मौत की इजाजत चाहिए। सर उठा के देखा, आवाज दी अब्बास तुझे कैसे जाने दूं, तू मेरी फौज का सालार है, तू मेरे लश्कर का अलमदार है। एक मर्तबा दार और भाई देखा, आवाज दे के कहा मौला वो लश्कर कहाँ है, मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ। मेरे सामने मेरे शागिर्दों को मारा गया और मौला मैं देखता रहा, वो लश्कर कहाँ है। चले और खैमे में पहुंचे। शहजादी सकीना आई और अज़ादारों आके कहा चचा सिर्फ एक घूंट पानी का ला दीजिए। आवाज दी बेटी सकीना तुम्हारा बाबा इजाजत नहीं देता। आवाज दी चचा इजाजत मैं दिलवाऊंगी, बस आप तैयार हो जाइए। अज़ादारों तैयारी क्या करवाई है। अज़ादारों आवाज दे के कहा शहजादी ने कि चचा आपका कद बड़ा है, मेरा कद छोटा है, मैं अपने हाथों से आपको मशकीज़ा पहनाना चाहती हूँ, अगर जहमत ना हो तो जरा नीचे झुकेंगे। अज़ादारों रिवायात कहती है अब्बास इतना झुके कि दोनों कदम दोनों हाथ जनाबे सईद सकीना के कदमों पे आ गए। ये मंजर देखा, काले बुरके वाली एक बीवी खैमे के दरवाजे से जिसका एक हाथ पहलू पे है रो रो के कह रही है अब्बास आज तेरे हाथ मेरी औलाद के सामने झुके हैं, मैं हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा वादा के क़यामत तक तेरा ये हाथ झुकने नहीं दूंगी। अब्बास मैं हुसैन की माँ वादा करती हूँ। चले हुसैन अपने खैमे में बैठे हैं, कब्जा तलवार पे सर। दूर से आते देखा चचा और भतीजी को, दिल में रो के कहा अम्मा मेरे उजड़ने का वक्त आ गया, मेरा अब्बास तैयार हो के आ गया। करीब आए, आवाज दी अब्बास सकीना की सिफारिश ले आए हो।
आवाज दी बाबा मैं लेके आई हूँ चचा को। आवाज दी सकीना क्या हुआ? आवाज एक चचा बाबा सिर्फ एक घूंट पानी पिलाने की इजाजत दे दीजिए। आवाज दी सकीना तुझे तेरा अली असगर बहुत प्यारा है ना? आवाज दी हाँ बाबा मुझे मेरा अली असगर बहुत प्यारा है। आवाज दी सकीना तेरा अली असगर कितने बरस का है? आवाज दी बाबा अभी तो मेरा अली असगर सिर्फ 6 महीने का है। आंखों में आंसू आए, रो के कहते अब्बास सकीना मैं इसे कैसे जाने दूं, मेरा 34 साल का कड़ियल जवान भाई सकीना जिसे मैंने बचपन से अपने हाथों पे पाला है, इसे मैं कैसे जाने दूं? इजाजत मिली, छोड़ दिया साहब, इजाजत मिली, फुरात पे पहुंचे, पानी भरा, वापस पलटे अब्बास और घोड़े की रफ्तार को बढ़ाया और अज़ादारों इतना बढ़ाया कि सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो खैमों में पानी पहुंचे। अज़ादारों ये घोड़ा रफ्तार से दौड़ा कि एक मलाउन ने तीर मारा। तीर का लगना था कि जनाब अब्बास का दाया बाजू कलम हुआ, दाएं बाजू का कलम हो रहा था कि अज़ादारों जल्दी से मशकीज़े को बाएं बाजू में पहना, मशकीज़े को बाएं बाजू में पहन के घोड़े की रफ्तार को बढ़ाया। एक मलाउन ने तीर मारा कि बाया बाजू भी कलम हुआ, जल्दी से मशकीज़े को दांतों में रखा और मशकीज़े पे झुक गए अब्बास। अज़ादारों हुरमला ने तीर चलाया, तीर का लगना था तीर मशकीज़े से पार हो गया। अज़ादारों जनाब अब्बास रुके, एक मलाउन ने तीर चलाया, आगे पेशानी में लगा, एक ने तीर चलाया, आगे आंख में लगा, पीछे से एक मलाउन बढ़ा, सर पे गुर्ज का वार किया, गुर्ज का लगना था बगैर हाथों के